Good morning. So, did anyone think about Sri Ganesh ji yesterday? Anyone has any thoughts? What could have actually happened and what is actually said and what is the actual meaning? Any thoughts? Did your mind at least start working on it? Ki how would this really have happened? हाँ? आप 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और हम सब पॉजिटिव बातें करते हैं और 5-10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं. And when you're going back, many of the brothers and sisters are telling me, today we didn't get angry, right? Today we remained stable. That means just by doing 5 minutes of meditation, we don't get angry. And after doing 10 years of tapasya, and even if we get angry, can we ever cut the head of a 10-year-old boy or anyone, in fact? Can you ever do that? However angry you get. Can you ever do that? तो आज हम कलयुग के अंत पे normal human souls who have become so weak, but even then we can never get so angry that we can cut the head of a child. And a deity, after 10 years of tapasya, could have got so angry that he cut the head of a child. Don't you think it is really illogical? नहीं लगता थोड़ा सा? हाँ? लगता नहीं थोड़ा सा? लगता है. So let's explore what could be the meaning of that. First, पार्वती जी ने अपने शरीर से इतनी मैल निकाले कि एक बच्चा बना दिया. Not possible. किसी के भी शरीर से इतनी मैल नहीं निकलती जो बच्चा बन जाए, उसका एक पूरा शरीर बन जाए. लेकिन शरीर की मैल means body consciousness. That today all of us are in body consciousness. Means we are in the consciousness, who am I? Who am I? I am the body. What is body? Today it's there, tomorrow it will go to dust. Right? So it's like मैल. ये कुछ नहीं है क्योंकि एक्चुअल क्या है? वो आत्मा है. तो वो जो बच्चा था वो किस चीज का बना था? शरीर की मैल का बना था. मतलब वो बच्चा किस स्थिति में था? बॉडी कॉन्शियस में था. एंड फिर शंकर जी नहीं आए, लेकिन निराकार परमात्मा शिव आए इस सृष्टि पर. बट टुडे व्हाट हैज हैपेंड? वी हैव मिक्स्ड द टू. एनी टेम्पल यू गो, any temple where there is a मूर्ति of शंकर देवता जी, साथ में क्या होता है? साथ में क्या होता? छोटा सा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन होता जरूर है. दिल्ली में near the airport we have a temple where there is this huge statue of Shankar ji. It's huge. Anyone can see it from anywhere. When you go inside, there is a छोटा सा ज्योतिर्लिंग there. So Shankar ji and Shiv ji always shown together, and so much always shown together that sometimes what do? We mix between the two of them. But Shiv is that Nirakar Paramatma, and Shankar ji is shown doing tapasya. Shankar ji की जो मूर्ति है, आंखें हमेशा कैसे दिखाते हैं? आंखें कैसे दिखाते हैं? हमेशा ऐसे तपस्या कर रहे हैं. तपस्या किस पर कर रहे हैं? वो शिव ज्योतिर्लिंग. तो मतलब ये देवी देवता है. तपस्या किस पर कर रहे हैं? वो निराकार परमात्मा के स्वरूप पर तपस्या कर रहे हैं. तो नाउ आई द चाइल्ड full of body consciousness, and my father, whom I have not met for a very, very long time, comes here. We haven't met our father for a very long time, no? And then he comes here. And when he comes here, we don't recognize him, because we haven't met him for a very, very long time. But now what does this father come and do? What does the Supreme Soul come and do when he comes onto the world? He first comes and cuts our head. हमारा सर काटते हैं. लेकिन कौन सा सर काटते हैं? ये सर नहीं, लेकिन ईगो का सर काटते हैं. किसी को भी कहते हैं ना, इसमें बहुत ईगो है. तो ईगो कहाँ सिग्निफाई होता है? सर में. इसका सर हमेशा बहुत ऊंचा रहता है.
मीन्स ये कौन कैसा व्यक्ति है? ये बहुत ईगोइस्टिक है, इसका दिमाग हमेशा बहुत ऊंचा रहता है। तो ईगो को काटना मतलब किसको काटा? सर को काटना। बट बिकॉज वी बिकम बॉडी कॉन्शियसनेस, वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग फिजिकल, सो वी आर नॉट सीइंग के ईगो को काटा। हम क्या कहते हैं, किसको काट दिया? सर को ही काट दिया। तो फिजिकल सर को नहीं काट दिया, लेकिन जो सटल वो सर में जो विकार है, ईगो को काटा। अब जैसे ही ईगो को काटा और सोल कॉन्शियसनेस आई, तो वी हैड सम क्वालिटीज एंड पावर्स विच गॉट डेवलप्ड, which are very visible in the face of an elephant. And that's why it is said कि ये वाला सर काटा और वो वाला सर लगा दिया। अब वो वाले सर में क्या है? आप आंखें देखो, आंखें हमेशा कैसे होती हैं गणेश जी की? आंखें कैसे होती हैं हमेशा? एकदम ऐसे छोटी। हाथी की आंखें हमेशा ऐसे छोटी होती है। यू नो व्हाट दिस छोटी आंखों का क्या मतलब है? जब आप कोई चीज दूर की देखते हैं, आपकी आंखें कैसी हो जाती है? If you have to see far, how would your eyes become? They become very small. Spirituality, when we cut the head of ego, our eyes become small, means हम कोई भी कर्म अभी करेंगे तो आगे का सोच के फिर करेंगे। तो आगे का देखकर फिर कर्म करो। तो जैसे ही आगे का देखेंगे, आंखें कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। कान कैसे हैं? कान कैसे? बड़े, सूप के जैसे। और छन्नी जो हम यूज करते हैं अनाज के लिए रोज, वो छन्नी क्या करती है? सब साफ चीज रखती है, कचरा। तो जैसे जैसे हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, हमारे कान कैसे बन जाए? एक छन्नी की तरह, साफ चीज रखे, कचरा तो वहीं का वहीं। ऐसे भी नहीं सुना, अंदर गया फिर बाहर निकाला, नहीं, अंदर ही नहीं गया, छन गया। तो कान कैसे हो जाते हैं? छन्नी की तरह। फिर सूंड कैसी है? व्हाट डज एन एलिफेंट डू विद इट्स ट्रंक? इट कैन डू टू थिंग्स. It can lift a child also very sweetly, and yet it can uproot a heavy tree also with the same trunk, right? वही सूंड है, दो काम कर सकता है। छोटे से बच्चे को ऐसे उठा लेगा और पूरे के पूरे पेड़ को भी उठाकर उखाड़ देगा। That means I have to be very very soft also, but yet at the same time I am going to be very very strong also. आजकल कई बार हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो बहुत कड़क हो जाते हैं, बिकम वेरी इनसेंसिटिव। और अगर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर स्ट्रांग नहीं रहते। इतने सॉफ्ट है कि एनीवन कैन जस्ट ट्रैम्पल ओवर अस एंड गो। सो नो, सॉफ्ट ऑल्सो तो साथ साथ स्ट्रांग ऑल्सो। तो ये एक एक चीज जो चेहरे में है, दिस विल गेट इनकलकेटेड विद अस when body consciousness is dropped and soul consciousness gets developed. गणेश जी का पेट कैसे दिखाते हैं? He is such a special deity, and yet look at his whole physical structure. It's so disproportionate because everything has a meaning. वो इतना बड़ा पेट क्यों दिखाते हैं? जब आपको कोई अपनी बात बोलता है तो कहता है ये बात अपने पेट में रखना, कहते हैं ना, ये बात अपने पेट में रखना। तो वो बड़ा पेट किस चीज का साइन है? कि हर बात अपने पेट में रखो, समाने की शक्ति। संभालो बात को, इधर से उधर, उधर से उधर, हर चीज नहीं, संभालो बात को। हाथ में क्या होता है गणेश जी के? गणेश जी के हाथ में क्या होता है? हाँ, कमल एंड मोदक। यस, मोदक कैसा बनता है? मोदक कैसे बनता है? जब 5 उंगली ऐसे होती है तब मोदक बनता है। पावर ऑफ कोऑपरेशन। I can do this, I can do this. No, nothing can happen alone unless we all come together. Power of cooperation will get inculcated when we practice meditation. Lotus, सब देवी देवताओं को you see them standing on the lotus flower. Have you ever thought how can somebody stand on the lotus flower?
हाँ, मंदिर में जाते हैं, श्री लक्ष्मी जी को मूर्ति को देखते हैं, किस पर बैठी है? लोटस फ्लावर। कैसे बैठेंगे इतने से लोटस फ्लावर पे? कैसे बैठेंगे इतने लोटस फ्लावर पे? तो इट्स नॉट अबाउट सिटिंग एक्चुअली ऑन अ लोटस फ्लावर. इट इज व्हेन वी कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर, when we purify ourselves, our life will become like the lotus flower. And how is the lotus flower? कमल का पुष्प क्या करता है? कीचड़ में रहता है और फिर भी कीचड़ से न्यारा रहता है. कमल का पुष्प हमेशा कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से बाहर इतना सुंदर फूल होता है. आज बहुत लोग कहते हैं हाउ टू प्रैक्टिस ऑल दिस. घर गृहस्थ में पॉसिबल नहीं, घर में रहकर, बिजनेस में रहकर पॉसिबल नहीं, लेकिन परमात्मा ने कहा पॉसिबल है. आपको अपनी जीवन कमल पुष्प की तरह बनाने हैं, जिसको इस कलयुगी दुनिया के कीचड़ में ही रहना है, छोड़कर नहीं जाना है कहीं भी. कीचड़ में रहना है, लेकिन जीवन को कैसे बनाने हैं? जीवन को कैसे बनाने हैं? कमल पुष्प की तरह, जो कीचड़ में रहेगा लेकिन कीचड़ उस पर नहीं लगेगा. We will be in the world of negativity. We will be in the world where there is pain, sorrow, hatred, corruption, everything, and yet we will rise above that. And when we rise above that, we become like the lotus flower. गणेश जी का आसन क्या है? What does he sit on? On the? वो चूहा ना? अभी वो भी नहीं कभी सोचा, इतना बड़ा गणेश जी और इतना श्रेष्ठ गणेश जी, दोनों चीजें. पहले तो इतना श्रेष्ठ गणेश जी, देवी देवता, आसन क्या दिया? चूहा. और फिजिकली भी इतना बड़ा गणेश जी और आसन क्या दिया? छोटा सा चूहा. कैसे पॉसिबल है? Would he be roaming around on a chua like this? Huh? Create the scene. No, see how it must be looking. Not possible. But what does it signify? And गणेश जी की मूर्ति को भी अभी कर देखे तो मोस्टली जो मूर्ति होती है ना, उसमें पाँव कैसे होते हैं? How are the legs? One leg is folded up and one leg is down. What could it mean? One leg is folded up and one leg is down. बहुत लोग कहते हैं हम फेड अप है इस दुनिया से, हमें नहीं रहना, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें छोड़ देना है सब कुछ. वन लेग इज डाउन, इसी में रहना है. एंड फिर भी वन